फादर के बारे में बताएं कि उनकी कैसे शुरुआत हुई और उन्हें उनकी क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग। बिकॉज शेरू भाजी ऑल्सो मेरे फादर के स्टूडेंट थे। नोट करें इवन खली स्टेड विद माय फादर फॉर मोर देन 10 years। तो एंड ऑफ द डे जितना भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो हम जाकर जो है यूएस में कर देते हैं। That governing body should be in India only, and that collection of money should stay in India is what I feel. फेडरेशन या संस्था नहीं बना पाए जिसमें जो हमारे इंडिया का पैसा वो इंडिया में रुक जाए और वो बाहर ना जाए। To check that हेमंत अंग्रीज जी को उन्होंने एग्जिट ले लिया, ऐसा क्यों? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है? Hello guys and welcome back to a brand new podcast where we explore the world of health, wellness and medical breakthrough. Our guest today is very special. He's a doctor, he's a surgeon from Jalandhar, as well as he and his family has contributed to modern bodybuilding. So we will dig deep into this and I'm talking about Dr. Ankur Hasti. So let's just welcome him. A very warm welcome, Dr. Ankur. Thank you so much, Mayank. I request you to quickly say a hi to everyone. Hello, everyone. I'm Dr. Ankur Hasti. I'm associate professor in surgery, and I'm a surgeon by profession, and I'm a general secretary for NPC Worldwide India and Bodybuilding for India. And this is it. तो डॉक्टर अंकुर आप ये बताओ कि इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर अ डॉक्टर टू बी सो मच inclined towards bodybuilding. तो bodybuilding आपकी लाइफ में कैसे आई? Bodybuilding I have born with actually. I've seen my father was a doctor too, and he was Mr. India. He is the father of modern Indian bodybuilding. You can say when I grew up in Jalandhar, I have seen my father traveling around in India, conducting championships, doing judging and taking classes to a lot of students he had. So I've seen my father training bodybuilders. So this is how I myself not a bodybuilder. I was a shot putter, and I played nationals from represented Punjab, won a junior nationals and won a school games as well. Then eventually joining MBBS in Government Medical College Amritsar. And so bodybuilding जो है वो आप कह सकते हैं कि पैदा होती हमें मिल गई, देखने को मिल गई कि सारे टाइम घर में मोमेंटोस पड़े होते थे बॉडी बिल्डिंग के, सारा टाइम बॉडी बिल्डिंग की बातें होती थी पापा के थ्रू, इस करके हम बॉडी बिल्डिंग में घुस गए। तो आप थोड़ा मतलब अपने फादर के बारे में बताएं कि उनकी कैसे शुरुआत हुई और उनकी क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग। मेरे फादर वी बिलोंग टू माय ग्रैंडफादर वाज इन पुलिस एंड my father was always athletic, and when he was very young he was into athletics. He was also a shot putter. He got a gold medal in national games in shot put representing Punjab. Then he switched to powerlifting. He represented India in World Powerlifting Championship. What year was this? Perth 1974. Then after when he was a powerlifter, then he thought let's become a bodybuilder. Then he represented Punjab and become a junior Mr. India. Then he started coaching people around India since you can say 1975, 96, 97, 76, 77. And he founded Punjab Bodybuilding Association, North India Bodybuilding Association, and Indian Bodybuilding Association was already there, but it was very primitive. So he was the one who actually put modern bodybuilding systems, or you can say Joe Weider systems, you can say American systems in Indian bodybuilding. So seeing वो सारी चीज़ें को देखते हुए मैं बड़ा हुआ. Unfortunately, my father, who was the father of Indian bodybuilding, passed away in 2016. Sorry to hear that. And just you can say I never wanted to leave his legacy, so that is why I jumped into this legacy of Indian bodybuilding. तो आप ये कह रहे हो कि that until 2016 you were not a part of bodybuilding? No, I was a part, but I was not active. I used to go see championships.
आई यूज टू सिट विद माई फादर। अब देखता था वो कैसे जजिंग करते हैं, कैसे बेसिक चीजें देखते थे वो। एंड ही वाज ऑलवेज फेयर टू ऑल द एथलीट्स। इट इज नॉट हिज एथलीट और एनीबडीज एथलीट। वो जिनको स्टेज पे जो अच्छा है, जिसका दिन है, वही वो जीता था। आई यूज टू आस्क हिम बेसिक थिंग्स कि व्हाई दिस मसल and why you want to make him first, not him. So he has always has a like one line answer. Just see his glutes. इसके glutes देखो नहीं है, इसका tricep छोटा है, look at his shoulder chest ratio. So ये छोटी छोटी चीजें मेरे को बोलते थे। I used to just listen and that is it. है ना? And जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से हम ये सुनते आ रही हैं चीजें, तो शायद वो उनके जाने के बाद वो बाहर आनी शुरू हो गई। एंड उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया की। एंड शेरूपा जी हो गए, मनीष गांधी बाजी हो गए, उसके बाद ओम प्रकाश अंकल हो गए, इवन हेमंत एंग्रिश बाजी हो गए। सारे पुराने मेरे को जानते थे बिकॉज शेरूपा जी ऑल्सो मेरे फादर के स्टूडेंट थे। So अच्छा। हाँ जी, he was my father's student. और हेमंत पाजी भी तो उनसे पहले बॉडी बिल्डिंग हेमंत पाजी बॉडी बिल्डिंग करते थे। He was an actor also, and but he was not into professional bodybuilding. Okay. Sherupa ji was a professional bodybuilder. He was also IFBB pro. ओके। And तो आप ये कह रहे हो कि शेरू पाजी को आपके फादर ने ट्रेन करा है? हाँ जी बिल्कुल, उनके मेरे फादर ने, मेरे चाचा जी हैं। Sorry, all this while we forgot to mention your father's name. I think your father Dr. Ranveer Rasteen. Dr. Ranveer Rasteen, right? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो एक मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन ले करी वो आपके फादर ने करी। बिल्कुल। आप बिलीव करते हो कि मेरे फादर ने 1984 में जिम खोला था जलंधर पंजाब में। इट वाज द फर्स्ट जिम इन पंजाब एंड नोबडी हैज अ कनेक्शन कि जिम भी कोई चीज होती है, बिकॉज पीपल यूज्ड टू गो टू अखाड़ा और पार्क्स में जाते थे, योगा कर लिया या थोड़ा बहुत वर्जिश कर लिया। एक प्रॉपर जिम इक्विपमेंट वाला। एंड आई स्टिल रिमेंबर ही वेंट टू यूएस एंड लॉट ऑफ things he saw, took pictures and came back to India and he made his own machineries. अच्छा। And started a gym in 84. Yeah. But professionally he was also a doctor, right? Yeah, he was MBBS from Government Medical College Amritsar. Okay. And he was MBBS, he's a physician and he had a very good OPD and he had a hospital as well. I am running that hospital. And so once the NPC was there and his guidelines into me, I started implementing. So now as a General Secretary of NPC Worldwide India, we've been doing shows pan-India and I've been judging all over the India with one of the elite judges, Dr. Som sir. And a lot of things to be learned and a lot of things implementing. And still I can think, I'm doing well, but I can do much better in bodybuilding, especially in judging part. Yeah. ठीक है, so we will dig deep more about the NPC and your current role in NPC. Yeah. But before we do that, let's understand कि how do you balance out your timing between being a doctor as well and because this requires equal time, right? Yeah, I know, क्योंकि but जो आपके NPC shows चल रहे हैं इस समय मार्च और अप्रैल के दौरान वो all over India चल रहे हैं. Absolutely. And you being the general secretary, I'm sure that you're in those events. Absolutely. Right. So definitely my work part gets hampered a little bit because every year 2 months in the summers and 2 months in the winters. You're busy. Weekends I'm busy. Weekends I'm traveling on Saturday evening, Sunday is the championship, Monday again coming back. So but we have to do it. You can't say it's my hobby. It's more like a passion now. I feel connected when I'm doing judging. I feel connected when I'm talking about bodybuilding. Irrespective of मेरी लाइन जो से बीइंग अ सर्जन है, वो उसको अलावा मैं बात किसी और लाइन से करता हूँ तो आई फील हैप्पी इनसाइड. So it is not always monetary benefit, but it is only a you can say inner satisfaction coming to a place where people are there and unknown people want to meet you and this and that. I feel happy inside, and this is actually special zone in me having a love for bodybuilding. Basically you want to carry out that legacy. Absolutely. Yeah. Okay. अब आप थोड़ा ये बताएं कि आपका करंट रोल जो है एनपीसी में वो क्या है? NPC Worldwide India, I am a general secretary right now, and we have our president Mr. Om Prakash Angrish, and we have a national manager is Rishi Anand, and definitely our mentors are Mr. Manish Gandhi and Sheru Angrish ji.
And founding NPC was always this thing कि it is a road to Mr. Olympia. And everybody who is doing bodybuilding in India, जो भी bodybuilding करता है या करना चाहता है या शुरू करता है, वो हमेशा अपने आइडल्स ओलंपियंस को देखता है। इधर आप आजकल हाइडी चुपन को देख रहे हो, सीबम, जहाँ पर सीबम को देख रहे हो, है ना। सो ये सारी चीजें आपको फैसिनेट करती हैं, आपको लगता है कि मेरे को जाना है ओलंपिया, पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। सो दिस इज द रोड। एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया, क्यों ये विजन सोचा गया शेरूपा जी के थ्रू? बिकॉज दे वांट के एक एमेच्योर फेडरेशन हो जो लड़कों को अच्छा तैयार करे और प्लेटफॉर्म दे। अब देखो, इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म IHFF है, जहाँ शेरू क्लासिक है, जिसके थ्रू एमेच्योर ओलंपिया है, जिसके थ्रू लड़के क्वालिफाई करते हैं, प्रो कार्ड लेते हैं एंड दे क्वालिफाई फॉर this Mr. Olympia. Recently हमारा IFBB Pro wheelchair pro John Rajesh, he became the first Indian to win a gold medal in Arnold Classic, and that is actually an achievement. That is a pro show and first Indian to win a gold medal. So he went to this roadmap. इसी रोड से गया ना वो, बॉम्बे वाले शो में वो प्रो बना, देन ही गॉट प्रो कार्ड, देन ही गॉट इनवाइटेड इन US कोलंबस में आया वो। तो यही रोड है। तो हमारा प्रोपेगेंडा किसी एथलीट के साथ ये नहीं है कि आप जबरदस्ती खेलना है। आप, अगर आपका विल है, मिशन है आपका, अगर आप मिस्टर ओलंपिया खेलना है, तो यही रास्ता है। एक बार आप थोड़ा सा ना इसका फ्लो चार्ट डिटेल में बताएं, क्योंकि जो भी नए बॉडी बिल्डिंग में बच्चे आना चाह रहे हैं तो वो कैसे इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और क्या क्या उनको माइलस्टोन जो है वो कवर करने होंगे। जी देखो, पहले तो ये सीधी सी बात है जी, आपको एनपीसी कोई भी शो खेलना है इंडिया में, आपको एक $30 की मेंबरशिप लेनी कंपलसरी नहीं। बट क्या एनपीसी से भी पहले कुछ उनको नहीं? एनपीसी देखो, आपको स्टेट शो खेलना मैंडेटरी है। आपको अगर नेशनल शो खेलना है, या एमेच्योर ओलंपिया खेलना है, या शेरू क्लासिक खेलना है, तो एनपीसी स्टेट शो इज मैंडेटरी। डॉक्टर अंकुर, ये भी तो होता है ना कि मतलब स्टेट शोज में अलग अलग फेडरेशंस है। नहीं सर, मैं एनपीसी की बात कर रहा हूँ। एनपीसी की, अच्छा, एनपीसी में भी पहले स्टेट लेवल। हाँ जी, एनपीसी की ऑलमोस्ट वी हैव 18 स्टेट व्हिच इज रजिस्टर्ड विद अस। ओके, दैट इज व्हाई वी आर कंडक्टिंग, हम हर इंडिया के ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स में चैंपियनशिप करा रहे हैं। हर वीकेंड, सैटरडे संडे कहीं ना कहीं चैंपियनशिप हो रही है। जैसे कल दिल्ली हॉकी हटी है, तो नेक्स्ट वीकेंड मणिपुर में है। ओके, उसके नेक्स्ट वीकेंड नोएडा में है। उसके नेक्स्ट वीकेंड हम साउथ इंडिया चले जाएंगे, केरला में चले जाएंगे, फिर चेन्नई चले जाएंगे। सो ऐसे रोटेशन चलती रहती है। इससे पिछले वीकेंड पे जलंधर में थी। श्योर। सो लड़कों का प्लेटफॉर्म ये है कि आपको $30 जो एनपीसी मेंबरशिप वो मैंडेटरी है, आपको देनी है। उसके बाद $30 ओनली 2500 रुपीज, एंड नेक्स्ट चैंपियनशिप फीस इज 2000 रुपीज। एंड आप वो पार्टिसिपेट करते हैं। वंस यू हैव गिवन अ $30, you are eligible to participate anywhere in India, that is once a year, and you can participate n number of championship with that $30 fees. That is a membership fees for NPC Worldwide that goes to the headquarter जो है अमेरिका में। ओके, जो NPC Worldwide का हेडक्वार्टर US में है, जो गवर्न करता है IFBB प्रो लीग, मिस्टर जिम मैनियन एंड टाइलर मैनियन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब बिफोर वी अगेन जंप ऑन टू द फ्लो एंड द माइलस्टोन दैट वन बॉडी बिल्डर नीड्स टू अचीव, बट ये सारी फेडरेशन जो है ये कंट्रोल्ड या गवर्न्ड बाय एक आउटसाइड कंट्री क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक इंडिया में ही ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि जो भी आप कैश कलेक्ट हो रहा है या जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो हम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, बल्कि वो इंडिया में ही रहना चाहिए, राइट? सर, यू आर राइट, बट वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन इंडिया। आपको मालूम है, इंडिया एक बहुत बड़ा तेज डेवलपिंग नेशन की तरफ जा रहा है। हम आज से अगर 50 साल पहले सोचें या 60 साल पहले सोचें, जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 60-70 साल पहले, तब हमारे शायद बॉडी बिल्डिंग था नहीं। हम सोचते हैं कि 1951 में मिस्टर वर्ल्ड बने थे हमारी कंट्री से, बट उसके बाद 1988 में मिस्टर प्रेमचंद डेगरा बने। वो 37 साल का जो गैप था, उसमें तो कोई खास बॉडी बिल्डिंग हुई नहीं। अगर हुई, कोई प्लेटफॉर्म पे पहुंचा नहीं, कोई राइट कोचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। मिस्टर डेगरा वाज माय फादर स्टूडेंट एज वेल। अच्छा, यस, प्रेमचंद डेगरा वाज माय फादर स्टूडेंट। सो आप ये चीज नोट करें, इवन खली stayed with my father for more than 10 years. He was in his academy, yeah. But he was not a bodybuilder. He was a bodybuilder. No, he was a bodybuilder. Achha, initially he was Mr. India also. He won Mr. India in Darjeeling in 1994. I still remember I was with him in Darjeeling. He went with us in the train. अच्छा, yeah.
तो before- that time his name was दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। अच्छा, तो पहले वो बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर इंडिया बने जी। उसके बाद उन्होंने जो है बिल्कुल जी बिल्कुल। रेसलिंग में मेरे फादर उनको लेके गए, मेरे फादर और मेरे चाचा जी हैं, वो लेके गए इनको सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पे मिस्टर ब्लूमबर्ग करके थे, उनके अंडर इनको ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर मिस्टर खली को इन्होंने ट्राई किया WWE में। पहले वो कुछ साल नहीं हो पाया, देन वो जापान में जाके उन्होंने रेसलिंग किया। ठीक है, रेसलिंग के बाद जापान के बाद जब वहां पे थोड़ा सा हिट हुए, फिर वो यूएस में उनको WWE मिला। उसके बाद उनको मूवी मिली एडम सैंडलर के साथ, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को मूवी का। अच्छा। और फिर उसके बाद तक हमारा जो उनका साथ था, फिर वो छूट खत्म हो गया। बट तब तक जो है आपके फादर बिल्कुल मेरे फादर के साथ हैंड होल्ड करके उनको बिल्कुल पहुंचाया। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। बेशक वो माने ना माने, हाँ। बट ये ट्रुथ है, ये truth इसकी ट्रुथ सारा जलंधर जानता है। नहीं नहीं, आई एम श्योर। हाँ जी। चलिए ठीक है, दोबारा से हम उसी पर ही आते हैं चर्चा पे कि मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ कि जो सारी फेडरेशंस हैं वो एंड ऑफ द डे जितना भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो हम जाकर जो है यूएस में कर देते हैं। सारी गवर्निंग बॉडीज जो हैं वर्ल्ड की, जहाँ यूरोप में है, जहाँ यूएस में है। सो हमारी ऐसी IFBB प्रो लीग जो है, जो मिस्टर ओलंपिया कराती है, वो भी यूएस में है। सो अभी ये आज से तो नहीं है, दे आर सिंस इंसेप्शन 1960s 1970 अर्ली 70 से हैं। तो जब यहाँ बॉडी बिल्डिंग शुरू नहीं इतनी प्रोफेशनली हुई थी, तो इस करके यहाँ पे वो फेडरेशन नहीं थी। मोर ओवर हमारा इंडियंस का अब जो माइंड सेटअप पहले था वो यही था कि वी आर मोर इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कल्चर। तो ऐसी बॉडी बिल्डिंग भी इन्फ्लुएंस थी वेस्टर्न कल्चर से। शुरू से उनकी मैगजीन्स पढ़ते थे हम, मसलन फिटनेस, उन्हीं की मैगजीन पढ़ते थे, उन्हीं के सब कुछ करते थे जब सोशल मीडिया नहीं था। तो इस करके सारी फेडरेशन भी वहीं पे इंक्लाइन थी। नहीं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली अगर मेरे को दोबारा मौका मिलेगा शेरू पाजी के साथ पॉडकास्ट करने का, तो मैं ये उनसे भी पूछूंगा क्योंकि ही इज एन इंडियन। और एनपीसी भी जब शुरू हुआ तो मैं ऑब्वियसली उनसे ये पूछूंगा कि आपने शेरू क्लासिक जो है वो मतलब उसमें यूएस का क्या योगदान है। ठीक है, यू नो इट्स अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर अ बॉडी बिल्डर गेट्स अ चांस टू कॉम्पीट इन मिस्टर ओलंपिया, व्हिच इज द बिगेस्ट platform for bodybuilders, but at the same time that governing body should be in India only, and that collection of money should stay in India is what I feel. So I will definitely put that question if I get a chance. About the monetary collection of the money, I am not involved in any. So कहाँ देखो क्या है वो तो, बट है तो सही ना, है तो सही है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि $30 हम लेते हैं और वो हमें यूएस देना होता है, राइट? नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनको ही उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन जाता है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम कोई ऐसी फेडरेशन या संस्था नहीं बना पाए जिसमें जो हमारे इंडिया का पैसा वो इंडिया में रुक जाए और वो बाहर ना जाए। आई थिंक ये तो जो who are more into this line of thing they can answer better, because मैं तो I think that I'm more into the amateur Indian bodybuilding. Yeah. I will leave this question and we'll move on, but I will definitely keep this question if I get a chance. Yes. And I will definitely ask शेरूपा जी। ठीक है, तो ये अब बताएं कि NPCB जो है वो क्या वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और उनसे हमने कुछ लाइसेंस ले रखा है इंडिया में रन करने का, ये सिर्फ इंडिया का ही? जी, NPC वर्ल्ड वाइड जो है, इट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय IFBB Pro League, run by Mr. Jim Manion and Tyler Manion, which is जैसे आप कह रहे हैं सबलेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, दैट इज NPC वर्ल्डवाइड इंडिया। वैसे NPC वर्ल्डवाइड इज इन USA ओनली, उनके अंडर वी दैट इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर दैट। सॉरी। तो मतलब घूम फिर के वही मुझे ऐसा यही लग रहा है कि दे हैव सारी अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने पास, they have all the countries, they have federations running up, like Canada, like Mexico, like Brazil, all the Europe, like China, Thailand, everywhere they have तो NPC। उन्होंने मैच्योर प्लेटफॉर्म भी अपने अंडर रखे हुए हैं, मैच्योर प्लेटफॉर्म भी जो है अपने अंडर रखे हुए हैं, which I feel is not right, but एंड ऑफ द डे इट्स नॉट माई कॉल, एंड आई एम श्योर कि जो भी इसको चला रहे हैं, शेरू बाजी भी काफी इन्वॉल्व है उसमें, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा जिसके कारण ये ऐसा चल रहा है। बट इट इज अ प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट इंडिया टू एनी ओलंपिक sport. So if IOC, International Olympic Committee, is governed by Europeans, तो India is also a member of that. So automatically India represents Olympic Games. जितने immature games हैं जो जैसे लोकल या स्टेट लेवल पर
गेम्स हो रहे हैं उसमें कोई ओलंपिक इन्वॉल्वमेंट नहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बट ये है कि एटलीस्ट यू हैव टू रीच देयर। ठीक है, एक क्वालिफायर होता है वो मैं समझता हूँ, बट ऐसी बॉडी बिल्डिंग में लेके चलते हैं। हाँ, वैसी बॉडी बिल्डिंग में हम लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो एनपीसी जो फाउंड हुआ 2019 में 19 में फाउंड हुआ इंडिया में जी। तो उसके कौन फाउंडर थे? उसमें फाउंडर मेंबर्स थे जी शेरूपा जी, मनीष गांधी पाजी, हेमंत पाजी एंड ओम प्रकाश अंकल एंड माई सेल्फ, डॉक्टर अंकुर अस्थिर एंड लवलीन भगत. We were 5-6 members who had a meeting before. Shirubaji put me in forward ke let's plan amateur federation in India, and we want के एक smooth platform दिया जाए एथलीट्स को, ताकि ये ना एथलीट्स को पता लगे कि कैसे पहुंचना ओलंपिया. So his vision was very clear कि there should be amateur federation. So amateur federation जो IFBB Pro League की है वो NPC worldwide है, जो USA में है. तो उन्होंने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, कोई ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सो IFBB प्रो लीग ने एक लेटर निकाली जिसमें एक प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने, एक जनरल सेक्रेटरी बनाया और एक मैनेजर बनाया. देन वी हाउ स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड वी हैव it's been now, we can say 5 years we've been doing it. Almost every year we're doing national championships, and already 4 national championships we have conducted. अभी lately एक I mean not to create controversy but I just want to check that हेमंत अंग्रीज जी को उन्होंने एग्जिट ले लिया, ऐसा क्यों? सर ये तो एक्चुअली पर्सनल उनकी चॉइस है. ही इज बीन ऑलवेज अ जेंटलमैन, उनकी पर्सनल चॉइस है. So let's not go into that because I have always kept a bodybuilding and relation separately, and I'm not involved in their decisions. I am running NPC as a general secretary, and I'm doing that. Thank you. ओके ठीक है, चलिए हम उस पर नहीं डिस्कशन करते. लेट्स कम बैक टू योर रोल इन एनपीसी. सो अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाए कि एग्जैक्टली आपका क्या रोल है. एज अ जनरल सेक्रेटरी आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स along with Rishi Anand and Om Prakash uncle, and we decide when to conduct a championship there, and with the help of state representatives, state managers and state heads, they guide us when to do a championship. And which is our few norms we have, like the championships जो है वो auditorium में होने चाहिए. It has to be a decorum has to be maintained, and fair judging has to be there. So because fair judging जो होगी तभी होगी कि अगर हम नेशन वाइड अपने जो हमारे हेड जज हैं डॉक्टर सोम, उनके साथ ट्रैवल करते हैं हर जगह. एंड ही इज IFBB प्रो जज, एवरीबडी नोज हिम, एंड आई डू जजिंग विद हिम, एंड देयर आर फ्यू रीजनल जजेस व्हिच वी हैव. एंड हमारा ये मकसद होता है कि कोई भी फेयर जजिंग हो और कोई भी लड़के को ये ना लगे कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है. दिस इज अ प्लेटफॉर्म, दिस रियल प्लेटफॉर्म. हम किसी एथलीट से कोई मॉनेटरी बेनिफिट या किसी एथलीट से कोई वीजा लगाने के चार्जेस नहीं लेते हैं. कोई बाहर भेजने की, जैसे किसने एथलीट्स ने जाना है खेलने के लिए, यूरोप खेलना है या US खेलना है या कनाडा खेलना है, कोई भी NPC का शो वर्ल्ड वाइड खेलना है, इट इज अ बेसिक थिंग. आप इंडिया में पार्टिसिपेट करें, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर आपको कोई लेटर चाहिए हमारे से, हम आपको एज अ जनरल सेक्रेटरी, एज अ नेशनल मैनेजर आपको लेटर प्रोवाइड करेंगे जस्ट फॉर वीजा हेल्प, एंड रेस्ट इज ऑन यू, हाउ यू present yourself to get a visa. Okay. If you are a true bodybuilder, 100% you will get it. तो आप ये कह रहे हो कि जो NPC इंडिया में खेल लेता है और क्वालिफाई कर लेता है, हाँ जी, वो NPC वर्ल्ड वाइड भी चैंपियनशिप क्वालिफाई की बात नहीं, जो इंडिया में एक बार खेल लेता है वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाता है. अच्छा, चाहे अगर आप उस लेवल के एथलीट तो आप अपने आप को समझते हो, तो डेफिनेटली आप बाहर जाके खेल सकते हैं. ओके. सो आप NPC के कोई भी शो इंडिया में खेल लेते हैं, कोई भी स्टेट शो खेल लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी खेलने के लिए. अगर आप उस लेवल के एथलीट हैं, आप इटली में खेल सकते हैं, आप यूरोप में खेल सकते हैं, आप कनाडा खेल सकते हैं, आप जहाँ जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड NPC एज अ सेक्रेटरी हमारा ये रोल होता है कि एथलीट को सपोर्ट करना. अगर उसको बाहर जाना है, NPC से लेटर चाहिए है उसको, हम सपोर्ट करते हैं. रेस्ट इज ऑन हिज ओन. उसने अपनी खुद टिकट बुक करानी है, खुद वीज़ा लेना है, और अब NPC का उसमें कोई रोल नहीं है. सिर्फ रिप्रेजेंटेशन उसको लेटर दे देते हैं ताकि उसको हेल्प हो जाए वीज़ा लगने में. तो सो ही इज ऑथेंटिक एथलीट. सो 99% सक्सेस रेट है. रिसेंटली कल ही एक लड़के ने कनाडा का वीज़ा लिया इसी बेस में कि उसने टोरंटो प्रो शो देखने जाना है, खेलने जाना है. सो आई बिलीव के इफ़ यू आर गुड एथलीट, यू वांट टू पार्टिसिपेट, रिप्रेजेंट इंडिया, आपने हिंदुस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करना है,
So I think NPC is a platform. श्योर। तो दोबारा से माइलस्टोन के बारे में एक बारी बात करते हैं डॉक्टर अंकुर। तो पहला माइलस्टोन हो गया कि आपको एनपीसी क्लियर करना पड़ेगा, राइट? एनपीसी खेलना पड़ेगा। जो एक बारी खेल लेता है वो उसके बाद IFBB देखो, आपने जब मेंबरशिप ले लिया एनपीसी का $30 देके, ये ऑटोमेटिकली यू आर अ मेंबर ऑफ एनपीसी वर्ल्ड वाइड, नेशनल वर्ल्ड वाइड मेंबर बन जाते हैं आप। ऊपर से आपने जब मेंबरशिप ले लिया और पार्टिसिपेट कर लिया कोई भी स्टेट शो में, तो यू हैव दैट सर्टिफिकेट, एंड दैट सर्टिफिकेट इटसेल्फ गुड रिप्रेजेंटेशन, which is fine, but I just want to know what is the road map for Mr. Olympia. So the first road map in India, अगर किसी लड़के ने पार्टिसिपेट करना है, he has to participate at state show, get a membership. Once participating in state show, go to Amateur Olympia state platform or a Shiru Classic platform in Delhi or Bombay. Delhi अभी जून में होना है, 8th, 9th, 10th, 7th, 8th, 9th जून, दिल्ली प्रगति मैदान, वहां पे पार्टिसिपेट करें। Once you become a pro card winner in that show, you are automatically eligible to participate in a pro show. देन दिल्ली में हमारा शो हो रहा है भारत प्रो। जब भारत प्रो में अगर आप अपनी कैटेगरी में जीत जाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग 212 है, लेडीज के लिए विमेन बिकनी है, उसके बाद क्लासिक फिजिक है, मेन फिजिक है, वंस यू विन दैट शो यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मिस्टर ओलंपिया लास वेगास, अमेरिका। सो ये यही रोड मैप है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट शोज, become a member of NPC for 1 year, then you go to Amateur Olympia, IHFF or Shiru Classic, wherever in Delhi or Bombay, you win a pro Bharat Pro show, then you go to Mr. Olympia. तो जब कोई यहाँ से भारत प्रो शो जीत जाता है तो उसके बाद क्या कोई फेडरेशन उसको एथलीट को हेल्प करती है मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए? भारत प्रो शो जो जीता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हमारी फेडरेशंस होती हैं, जहाँ हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि आप ओलंपिया जा रहे हैं, टिकट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय अस। ओके, यस, ओके, बिकॉज इट इज एक्चुअली हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया का लड़का ओलंपिया स्टेज पे खड़ा हुआ है, बहुत गर्व की बात है। राइट। तो डॉक्टर अंकुर अभी आप बता रहे थे मतलब देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन बॉडी बिल्डिंग, तो आपसे एक बार ही समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है और मतलब क्या उसके क्वालिफायर्स होते हैं? देखो, एक तो बेसिक सबसे पहले बॉडी, जिसको बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, मैन बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग 212 इज द सेम एज बॉडी बिल्डिंग? हाँ नहीं, बॉडी बिल्डिंग 212 इज एक्चुअली वेट एंड हाइट कैटेगरी, जिसमें आप आपके वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कितने बड़े हो जाएंगे आप, है ना। इट इज मोर लाइक अ 212 कैटेगरी, एंड बेसिकली इसको इसलिए रखा है कि यू नॉट दैट बिग एज अ प्रो बॉडी बिल्डर्स, बट यू आर स्टिल one of the strong bodybuilders. But that is why उनको 212 कैटेगरी बोला है। सो एक तो बॉडी बिल्डिंग मेन कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग वेट्स हैं, जिसमें अराउंड 8 वेट कैटेगरीज हैं, राइट फ्रॉम लाइट वेट टू द बैंटम वेट टू द वॉल्टर वेट एंड लाइट हैवी एंड हैवी वेट। ओके, सो ये बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज हैं। उसके बाद मेन फिजिक कैटेगरी है, जिसमें अगेन हाइट एंड वेट, हाइट के हिसाब से उसमें है, इफ यू आर अबव बिलो 5'7", above 5'7", 5'9", 5'9" above to 6 above, and this is how like 4 to 5 categories according to the height. This is men's physique. But this is men's physique. Then you go to classic physique. Classic physique again to the height and weight categories. That is class A, class B, class C, around below the 70 kg, between 70 to 90. So this is how we differentiate. But एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, जब सबका ही कैटेगरी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हाइट और वेट के हिसाब से, तो उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे डालते हैं कि इसको या फिर somebody is below 5'7", he goes to the category A. नहीं, कैटेगरी तो चलो ठीक है, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो मेंस फिजिक या क्लासिक फिजिक है, उनमें क्या फिर डिफरेंस रहता है? मेन फिजिक आर यूजुअली वी व्हाइल डूइंग जजिंग, हम जब जजिंग करते हैं मेन फिजिक में, तो हम वी डू सी द सिमेट्री, शोल्डर एंड वेस्ट रेशियो देखते हैं, स्मॉलर द वेस्ट बिगर द शोल्डर। अच्छा, सो मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि बॉडी बिल्डर मेन फिजिक वाला नहीं होता है। A bodybuilder on the stage cannot become a man physique athlete. Man physique athlete mean aesthetically आपको बड़ा symmetrical होना चाहिए, आपकी quads, आपकी chest should not be that big, it should be sleek, the shoulders should be big, and your waistline should be very small. Okay, so this is men physique. Proper V shape. This is men physique. Plus your abs and your quads should be very fine. Okay, so this is what we see in now we started seeing calf as well.
in men physique athletes because they're wearing a shorts till the knees and we see Calves. whosoever is a better calf. Yeah. The most difficult body part. Yeah, I know it's most difficult, but still, whosoever has a better calf have a better legs and a better core. So legs is very legs आप करेंगे तभी आपको better core होगा. So एक तो हो गया men physique. Then classic physique we see more into symmetries, like more muscle, like muscle mass is also there, and symmetry of all the muscle has to be there, and different poses are in men physique are there. More you do vacuum of the abdomen, है ना, vacuum pose करते हैं, and it is more into classic physiques. So classic physique has 4 compulsory poses and 1 classic pose, and bodybuilding has 7 compulsory poses. Different things we have. एक वैसी जेनरिक क्वेश्चन है मेरा कि आपने पोजिंग जैसे बोला, तो अगर किसी की फिजिक अच्छी है किसी बॉडी बिल्डर की, बट ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज इन टर्म्स ऑफ पोजिंग, तो क्या आप उसको आउट कर देते हो या फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है? होता क्या है सर, दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन. Mainly mostly at the lower level, you can say district and state level, we don't ignore it, we tell the athlete to improve your posing. But if he is good on the stage, statically, body wise, so definitely we'll take him as it, but not at the top levels, not at the Chiro Classic levels, amateur Olympia levels, like IHF levels, because वहाँ पे posing itself it's very important in men physique. Better the posing, stage presence is बहुत important है class men physique के अंदर. Got it. So ये एथलीट्स को समझना चाहिए कि एक जज उसी को देखेगा जो एक पोजिंग की क्वालिटी दिखाएगा. क्योंकि आपके सामने 50 लड़के खड़े हैं एंड आप उसको जज करना है अपने आने वाले 10 मिनट में, तो आपकी नजर उस पर जरूर जाएगी जो हु इज डूइंग बेटर पोजिंग. सो पोजिंग वही तभी बेटर करोगे आपकी जो रिपीटेडली आपने वर्कआउट किया होगा, रिपीटेडली उसको पोजिंग किया होगा. तो यही है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी है हमारी, ये जो हमें स्टेज पे वही चीज अच्छी लगती है जो बार बार दिखती है. दिस इज ह्यूमन परसेप्शन. तो आप ये कह रहे हैं कि पोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो इनिशियल स्टेज के कंपटीशन होते हैं उसमें आप एक बारी को फिर भी उनको चांस दे देते हैं कि हाँ स्टैटिकली आप अच्छे हैं, बट आपको पोजिंग में बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा. गॉट इट. बट किसी भी अच्छे लेवल पर अगर आपकी पोजिंग नहीं है, चाहे आपकी बॉडी अच्छी भी हो, आप नहीं क्वालिफाई कर. बिल्कुल सही, बिल्कुल. ओके. एक और क्वेश्चन है जो काफी मुझे लगता है कि वैलिड होने वाला है आपके लिए कि मतलब आप उन चीजों से कैसे डील करते हो कि अगर कोई एथलीट है, आपने किसी को बीइंग अ जज, आपने किसी को विनर चूज कर लिया, बट अ लॉट ऑफ एथलीट्स दे फील दैट ये डिसीजन राइट नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे एनकाउंटर करते हैं? देखो, जजिंग, बॉडी बिल्डिंग जजिंग जो है एक बड़ा पर्सनल सा मैटर है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट आई फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ड्रास्टिकली आप किसी को गलत, एज अ लेमैन, कोई भी लेमैन भी बैठा है, उसके सामने एक अच्छा लड़का खड़ा है और एक कमजोर लड़का खड़ा है, आप कमजोर लड़के को फर्स्ट देने को डेफिनेटली आपकी गलती है. 19 मीन्स के किसी का ग्लूट अच्छा है और किसी का शोल्डर अच्छा है, किसी की बैक अच्छी है, उसमें हो सकता है. बट इवेंचुअली क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एथलीट्स देखते हैं, तो हमारी जजिंग की परसेप्शन जो होती है वो यही होती है कि आज स्टेज पे कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है. जरूरी नहीं है कि 2 हफ्ते पहले वो लड़का फर्स्ट वाले को काट के आया था. यू अंडरस्टैंड? वो किसी और चैंपियनशिप में वो फर्स्ट था, आज वो सेकंड हो गया, जो सेकंड था वो फर्स्ट हो गया. आज वो क्या लग रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो हमारे लिए तो सब लड़के फेयर हैं. मैं कोई किसी को कोचिंग नहीं देता, मैं तो एक जज हूं, और मैं तो यही देखता हूं कि आज का दिन में वो कौन सा अच्छा लग रहा है, उसके आज की उसकी प्रेपरेशन कैसी है, ये होता है. तो इस करके मैंने अपने जजिंग 10 साल के अंदर मैंने नहीं कभी इनकाउंटर किया मेरे को आगे किसी ने क्वेश्चन किया और फ्रैंकली बोला तो आई थिंक दिस इज व्हाट एथिक्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फादर. No, which is good. तो आई थिंक वो वैसे ही होता है कि जैसे क्रिकेट में आज मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा बन गया, कल विराट कोहली बन गया, तो जो उस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल वो विनर बन जाता है. राइट? एक अच्छा एथलीट को यही होती है परसेप्शन कि मैं तो जीतने जा रहा हूँ. डेफिनेटली वो जीत रहा है, बट हो सकता है कि उस दिन उसकी वाटर लोडिंग थोड़ी ज्यादा है, पानी नहीं कम हुआ, जहाँ थोड़ी सी है ना शार्पनेस कम है,
तो डेफिनेटली ऊपर नीचे हो जाता है। डॉक्टर अंकुर, आपने भी एक जो बात बोली है उसी से ही रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, बट मैंने ये देखा कि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और फिटर्निटी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है? आई मीन, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, बट देर आर, आई मीन, आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर टिप्स, बहुत सारी हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसलिए है कि कोई एक मेन गवर्निंग बॉडी नहीं है, या क्या रीजन हो सकता है? Sir, on this briefly, I want to tell one thing. Bodybuilding is not an Olympic game, first of all. It doesn't come under International Olympic Committee. Right. So, as it is presumed to be only a drug game, it is not actually. So, anybody can go and conduct a bodybuilding championship. Just keep any amount of money and athletes will come because there is no governing body. You're right. अभी होता क्या है कि पार्शियलिटीज करते हैं बहुत ज्यादा कुछ फेडरेशंस एथलीट्स के साथ। आई डोंट वांट टू नेम देम। मैं भी कुछ फेडरेशन में था जो मेरे फादर जिसमें थे, मैंने छोड़ दी थी उसको। सो वही कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं कि वो पार्शियलिटी की वजह से करते हैं, और इसी की वजह से कुछ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बदनाम भी होती हैं। वो एक छोटी सी बदनामी करके बाकी फेडरेशन भी बदनाम होती हैं। सो बेसिक यही है कि जब तक हम ओलंपिक गेम नहीं बनते, जब हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडी नहीं आती, तब तक ये मल्टीपल फेडरेशन, मल्टीपल चैंपियनशिप चलती रहेंगी। बट एज एनपीसी जनरल सेक्रेटरी मेरे को यही है कि अगर आपने रोड ऑफ ओलंपिया पकड़ना है तो आप लिजिट फेडरेशन में आके पार्टिसिपेट करें, एमेच्योर ओलंपिया खेलें, IHFF जाएं एंड शिरो क्लासिक खेलें, ताकि आप एक प्रो कार्ड बने और आगे निकले, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अगर आपका ये विजन है, ये एम है, सो आई थिंक दिस इज द वे। आप कंट्रोवर्सीज तो सर आई बिलीव रेसलिंग में भी थी, कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी गेम्स में इंडिया में है, बट जब तक हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडीज, आप कैसे गवर्नमेंट बॉडीज नहीं आती, तब तक कह नहीं सकते। बट एज इट इज what we are doing as NPC Worldwide India, I think we are doing a fair job to promote bodybuilding in the right way. No, I am not questioning that. My question is that कि मतलब हर लेवल पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ कोचेज में हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो जिनको बॉडी बिल्डिंग का कुछ भी नहीं पता ना, वो लोग भी आकर कमेंट करने लग जाते हैं बॉडी बिल्डर्स के बारे में, कोचेस के बारे में, जजेस के बारे में। So easy book is available on the internet is Google. So you Google, you get everything out. So that is the point.